میر درد کے بعد ہمارا اگلا موضوع ہے میر تقی میر۔ تو آئیے ناظرین میر تقی میر کے بارے میں کچھ معروضی معلومات دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے نام محمد تقی، تخلص میر، پیدائش 1723 عیسوی میں آگرہ میں ہوئی، 1810 عیسوی میں وفات ہوئی، کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں۔ والد کا نام محمد علی، چچا کا نام امان اللہ، اور دو بیٹے تھے ان کے، فیض علی فیض اور حسن عسکری عرش۔ میر کو فورٹ ولیم کالج بلایا گیا تھا لیکن عمر اور صحت کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ سوال بھی نیٹ ایگزام میں آ سکتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جس کو فورٹ ولیم کالج میں دعوت دی گئی تھی، تو وہ میر تقی میر ہے۔ میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی میں لکھنؤ آئے۔ سن 1781 کہاں گئے؟ لکھنؤ۔ کس کی دعوت پر؟ آصف الدولہ کی دعوت پر۔ میر نے لکھنؤ میں 31 برس گزارے۔ یہ سوال بھی آ سکتا ہے، فیکٹ بیس ہے۔ میر سے متعلق سب سے بڑا کام شمس الرحمن فاروقی نے کیا ہے۔ فاروقی نے میر کے متعلق شعر شورانگیز لکھی ہے اور یہ کتاب 5 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس پر انہیں سرسوتی سمان سے بھی نوازا گیا۔ ناظرین آپ کو بتا دیں کہ میر تنقید پر جو سب سے بڑا کام ہے وہ ڈاکٹر ریشما پروین نے کیا ہے، اور ان کی 2 کتابیں میر تنقید تذکروں سے عصر حاضر تک، اور دوسری کتاب ہے دیدنی ہوں جو سوچ کر دیکھو۔ ابھی بہت جدید کام ہے، 2014 میں اس کی اشاعت ہوئی ہے۔ میر کے والد کی نصیحت، میر کے والد نے انہیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا عشق کرو، عشق ہی اس کارخانہ ہستی کا چلانے والا ہے۔ حاتم کے شاگرد بقا سے میر کی ادبی چشمک رہتی تھی۔ ادبی چشمک کس سے کس کی رہی ہے؟ یہ سوال بھی آتا ہے۔ تو بقا سے ان کی ادبی چشمک رہی ہے اور دونوں نے ایک دوسرے کی حجمیں کہی ہیں۔ بتا دیں ناظرین کہ میر اور سودا میں بھی پہلے تو بہت اتحاد تھا لیکن بعد میں ادبی چشمک ان میں بھی ہو گئی تھی، لیکن فی الوقت بقا جو ہے وہ بالکل سامنے کے ان کے ایسے شاعر تھے جن سے ان کی چشمک رہا کرتی تھی، اور میر کی جو حجویہ مثنوی ہے ازدر نامہ وہ بھی اسی زمانے کی تخلیق ہے۔ اب میر کی کارناموں کی بات کر لیتے ہیں۔ میر کے کل 7 دیوان ہیں جن میں سے 6 اردو ہیں اور 1 فارسی کا دیوان ہے۔ دیوان زادہ، اکثر یہ سوال آتا ہے کہ دیوان زادہ جو ہے وہ کس سے متعلق ہے؟ تو میر تقی میر سے متعلق ہے، اور یہ دیوان پنجم کا انتخاب ہے، یعنی میر کے دیوان پنجم کا انتخاب ہے۔ میر نے اپنے کلام کو خواص پسند قرار دیا ہے۔ یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سا شاعر ہے جس نے اپنے کلام کو خواص پسند کہا ہے؟ تو میر تقی میر۔ خواب و خیال، معاملات عشق، شعلہ عشق وغیرہ ان کی اہم مثنویاں ہیں۔ ان کی مثنویوں کے نام بھی پوچھ لیے جاتے ہیں۔ میر کے مطبوعہ کلیات میں کل 7 قصائد بھی شامل ہیں۔ میر نے 34 مرثیے اور 7 سلام بھی لکھے۔ اس کے بعد ان کی نثری تصانیف کی بات کرتے ہیں۔ نکات الشعراء جو اردو شعراء حضرات کا پہلا تذکرہ ہے اور فارسی زبان میں لکھا گیا، یہ نکات الشعراء جو ہے وہ میر کا تذکرہ ہے اور جو 1752 میں اس کی تخلیق ہوئی تھی یا اس کی اشاعت ہوئی تھی۔ ذکر میر 1722 عیسوی میں اشاعت ہوئی اور خود نوشت ہے۔ یہ ذکر میر میر کی خود نوشت ہے جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے حالات رقم کیے ہیں، اور یہ کس زبان میں ہے؟ فارسی زبان میں۔ اس کے بعد فیض میر، یہ 5 حکایات پر مشتمل کتاب ہے فیض میر۔ اس کے بعد ناظرین میر تقی میر پر پیش کیے گئے چند نظریات پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلا نظریہ ہے قائم چاندپوری نے میر کو میر خمیر کہا۔ یہ سوال بھی اکثر نیٹ ایگزام میں آتا ہے کہ میر کو کس نے کہا؟ تو قائم چاندپوری نے کہا۔ میر واسوخت کے موجد ہیں، یہ بات مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی مشہور زبانہ تصنیف آب حیات میں کہی ہے۔ میر اردو کے شیخ سعدی ہیں، ان کا کلام اکثیر شاعری ہے، یہ بات رام بابو سکسینہ نے اپنی تاریخ پر جو ان کی کتاب ہے اس میں کہی ہے۔ میر کی شاعری دلی اور دل کا مرثیہ بن گئی ہے، یہ بات خواجہ احمد فاروقی نے کہی ہے۔ میر کا کلام آ ہے اور مرزا کا واہ، یہ بات خواجہ باسط نے کہی ہے۔ میر کے اشعار کی داخلیت بھیتری چوٹ ہے، بھیتری چوٹ، یہ لفظ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ فراق گورکھپوری کا ہی ہو سکتا ہے قول۔ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، یہ بات فراق گورکھپوری نے کہی ہے۔ بتا دیں کہ فراق اردو کے شاعر بھی ہیں اور اردو کے ناقد بھی ہیں۔ اس کے بعد آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں، یہ غالب کا شعر ہے کہ غالب اپنا تو عقیدہ ہے بقول ناسخ کہ آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ ہندوستان میں میر اپنے وقت کے سب سے بڑے ہندوستانی، سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر ہیں، یہ بات شاعر تھے، یہ بات فراق گورکھپوری نے میر کے متعلق کہی ہے۔
लुत्फ मुझ में भी है हजारों मीर, दीदनी हूँ जो सोच कर देखो। मीर के बारे में उनकी ज़िंदगी में ही लिखा जाना शुरू हो गया था और मीर तनकीद की फहरिस्त इतनी तवील है कि आज भी मीर की शायरी पर तनकीद की जा रही है, यानी उनकी कदरशनासी की जा रही है। मीर तनकीद तस्करों से असर हाजिर तक और दीदनी हूँ जो सोच कर देखो डॉक्टर रेशमा परवीन की किताबें हैं जो बिल्कुल जदीद तरीन है और 2014 में उनकी इशाअत हुई, जिसमें 262 साला मीर तनकीद को यकजा पेश कर दिया गया है। बेशक ये किताब बहुत ही मुस्तफीद है उन तलबा और तालिबात के लिए जो मीर और उनके अहद की शायरी का एक दिलचस्प मुताला करना चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, एक सवाल जो डीप स्टडी के बाद ही हमें समझ में आ सकता है कि मीर को खुदाई सुखन क्यों कहा जाता है। मीर को खुदाई सुखन कहा जाता है ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन क्यों कहा जाता है इस बात का हमें मालूम होना बहुत ज़रूरी है और ये बात मालूम होती है डीप स्टडी के बाद। तो मीर को खुदाई सुखन इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके अहद में ऐसा नहीं कि बड़े शायर नहीं थे, सौदा बहुत बड़े शायर थे। इसके अलावा भी जो उनके पहले के शुरा हज़रात थे उन्होंने भी उर्दू शायरी की है, लेकिन मीर की खूबी ये है कि उन्होंने बैक वक्त नसरी असनाफ में भी तबाह आजमाई की और शायरी में भी, और निकात शोरा जो है वो उनका पहला तस्करा है। इसके अलावा उन्होंने मसनवी, कसीदा, मरसिया इन तमाम असनाफ में तबाज़माई की है और गज़ल की जो उनकी ज़बान है, गौर करें नाज़रीन कि जो उनकी ज़बान है गज़ल के मुतालिक वो तमाम शुरा हज़रात से अलग नज़र आती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज़बान, उनके जो मौज़ूआत हैं उनका दायरा भी वसी है। उनके कलाम में फ़लसफ़ियाना मज़ामीन भी शामिल हैं, इश्क़ हक़ीक़ी, इश्क़ मजाजी, और अब सबसे बड़ी चीज़ कि उनके जो शायरी है उसमें अपने अहद की अक्कासी और तर्जुमानी जाबजा देखने को मिलती है। और इसके अलावा जो निकात शोरा में उन्होंने तनकीद की है शुरा हज़रात पर, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि मेरा जो रंग कलाम है वो सबसे अलग है। लेकिन उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है, आखिर में वो ये कहते हैं कि हर फूल का रंग और खुशबू अलग है, जहाँ पर वो इस बात को तस्लीम करते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम सबसे बड़े, सबका अलग अलग रंग है और सबकी अलग अलग खुशबू है। जहाँ हम ये बात देखते हैं कि उनकी ये वसीउ नज़री रही है कि उन्होंने अपने अहद के दीगर शुरा हज़रात को भी तस्लीम किया है और वो उनकी भी अहमियत का एतराफ़ करते हैं। मीर का जो अहद है वो मीर तकी मीर का जो अहद है वो मीर दर्द के अहद से मुशाबे, यानी कि दोनों का अहद एक है। और अहमद शाह अब्दाली और नादिर शाह के हमलों से दिल्ली जिस वक्त तबाह हो चुकी थी उस वक्त मीर तकी मीर दिल्ली में मौजूद थे और ज़िक्र मीर में उन्होंने इस बात का बहुत तस्करा किया है कि जो दिल्ली के गलियां थीं, जो दिल्ली के शब व रोज़ थे वो किस हद तक मुतासिर हुए थे। अपने एक शेर में वो ये कहते हैं कि दिल्ली के न थे कूचे औराक़े मुसव्विर थे, दिल्ली के न थे कूचे औराक़े मुसव्विर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। इसके बाद जब वो अवध में जाते हैं और लखनऊ तशरीफ़ ले जाते हैं आसिफुद्दौला की दावत पर, तब उनका जो सरापा होता है, उनके जो कपड़े होते हैं और उनका जो पहनावा और मिजाज होता है उसकी लोग वहाँ पर एक तरह से उसका मजाक उड़ाते हैं। तब मीर तकी मीर की ज़बान से एक क़ता निकलता है जो अक्सर नेट एग्जाम में भी पूछा जाता है कि क्या बोदो बाश पूछे हो पूरब के साकिनो, क्या बोदो बाश पूछे हो पूरब के साकिनो, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब भी जहाँ रोजगार के, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, जिसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। तो नाज़रीन, यहाँ हम देखते हैं कि मीर की जो शायरी है वो दिल और दिल्ली का मरसिया बन गई है, जैसे कि अहमद फारूकी ने कहा भी है। और सबसे बड़ी चीज़ जो उनका मिजाज था, क्योंकि वो शुरू से सूफ़ी हजरात की ही सोबत में रहे थे, इसलिए उनकी तबीयत में, उनके मिजाज में एक तरह की बरहंगी पैदा हो गई थी और मजनून भी हो गए थे हालात के सबब, ये बात भी सभी जानते ही हैं। तो उनके मिजाज में एक तरह की क़नाअत पसंदी पैदा हो गई थी कि जो उलमा हज़रात, जो सलातीन के दरबार भी उन्हें रास नहीं आते थे। और जो उनकी ज़बान है, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो उनकी ज़बान के बारे में नाज़रीन, उनकी ज़बान की जो खूबी है वो ये कि जो वो महसूस करते हैं, यानी कि आप बीती को जगबीती बनाने के लिए वो जिस ज़बान का इंतखाब करते हैं वो ज़बान कोई एक ज़बान नहीं है, वो
प्राकृत भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ब्रज भाषा भी इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके अलावा वो फारसी के शीरी अल्फाज का भी इस्तेमाल करते हैं और उर्दू तो खैर है ही उनकी ज़बान। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वो किस ज़बान से उनके कलाम में अल्फाज आ रहे हैं, इस पर गौर करने के बजाय वो इस बात पर गौर करते हैं कि किसी सूरत को देखकर जो ख्याल उनके दिल में तारी हुआ है वही ख्याल सामने वाले के या सामईन के दिल में भी तारी हो, ऐसे अल्फाज का वो इस्तेमाल करते हैं। मसलन उनका ये शेर, पस्तो बुलंदियाँ हैं अर्ज़ो समा से ज़ाहिर, पस्तो बुलंदियाँ हैं अर्ज़ो समा से ज़ाहिर, देखा जहाँ को हमने कितनी कढ़प जगह है। नाज़रीन यहाँ पर गौर कीजिए कि कढ़प का जो लफ्ज़ है ये फसीह नहीं है, लेकिन क्योंकि ये जो तासुर है कढ़प से हमारे सामने पूरी तस्वीर आ रही है कि किस ज़माना दुनिया जो है वो किस तरह की है, कितनी कढ़प जगह है। तो इस लफ्ज़, भले ये लफ्ज़ फसीह नहीं है, लेकिन जो तस्वीर मीर तक़ी मीर दिखाना चाहते हैं वो बिल्कुल वाज़ेह हो रही है। इसी तरह से मीर तक़ी मीर की ज़बान की अगर हम बात करें तो जिन तलमीहात का वो इस्तेमाल करते हैं, तशबीह और इस्तारे का जो वो इस्तेमाल करते हैं वो भी बहुत ही सटीक होता है और बहुत ही सामने का होता है, जिसको आबकारी बहुत आसानी से समझ सकता है। मसलन उनका वो शेर कि हस्ती अपनी हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, यहाँ पर हबाब को वो शराब से तशबीह दे रहे हैं। या नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है, यहाँ पर महबूब के होठों को वो गुलाब की पंखुड़ियों से तशबीह दे रहे हैं, जो बहुत ही उम्दा इनकी तशबीह है और बिल्कुल सामने की है कि आमकारी भी उसको आसानी से समझ सकता है। इसके अलावा वो सनत तलमी का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, आतिश बुलंद दिल की न थी वरना ए कलीम, यक शोला बरक़े खिरमने सद कोहे दूर था। यहाँ पर एक एक लफ्ज़ का बहुत ही अच्छे से इन्होंने इंतखाब किया है और सनत तलमी का इस्तेमाल किया गया है और मूसा कलीमुल्लाह का यहाँ पर वो तस्करा कर रहे हैं, उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। और नाज़रीन इसी तरह से इनके यहाँ मारिफत के भी अशार और सूफियाना शायरी भी नज़र आती है, जब वो ये कहते हैं कि था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, खुर्शीद में भी उसका ही ज़र्रा ज़हूर था, और पहुँचा जो आपको तुम्हें पहुँचा खुदा के तईं, मालूम अब हुआ कि बहुत मैं भी दूर था। इसके बाद नाज़रीन हम UGC नेट के उर्दू जो गुज़िश्ता सालों के जो सवालात हैं उन पर हम तबसरा करेंगे और देखते हैं निकात शोरा का मुसन्निफ कौन है। ये सवाल पूछा गया है UGC नेट के एग्जाम में। तो निकात शोरा का मुसन्निफ कौन है, ये बात अभी आपको बताई जा चुकी है, मीर तक़ी मीर है। मीर तक़ी मीर की शायरी के कुल कितने दीवान हैं? तो कुल 7 दीवान हैं, जिसमें से 6 जो दीवान हैं वो उर्दू के हैं और एक फारसी का दीवान है। मीर तक़ी मीर की विलादत किस शहर में हुई? बताया जा चुका है कि आगरा में हुई और जो वफ़ात हुई वो लखनऊ में हुई 1810 ईस्वी में। इसके बाद शेर शोरंगेज़ किसकी तसनीफ़ है? शम्सुर रहमान फारूकी की। ये सवाल भी बोर्ड पर बताया जा चुका है। दिल और दिल्ली का मरसिया किसकी शायरी को कहा गया? मीर तक़ी मीर की शायरी को। मीर तक़ी मीर किस नवाब की दावत पर लखनऊ आए? आसिफुद्दौला की दावत पर। ये तमाम सवालात बोर्ड पर समझाए जा चुके हैं और ये गुज़िश्ता सालों में पूछे भी गए। किस शायर ने अपने कलाम को खवास पसंद करार दिया है? मीर तक़ी मीर ने। मीर के निकात शोरा के जवाब में माशूक़े चहल साले खुद का तस्करा किसने लिखा? तो इसके राइटर है मीर मोहम्मद यार खाकसार। कुल्लियात मीर पहली मरतबा कब और कहाँ से शाया हुआ? तो ये नेट एग्जाम में सवाल पूछा गया है। कुल्लियात मीर पहली मरतबा फोर्ट विलियम कॉलेज से 1811 ईस्वी में शाया हुआ। सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया हमको, सरापा आरज़ू होने ने बंदा कर दिया हमको, वगरना हम खुदा थे गर दिले मुद्दा होते। ये किसका शेर है? ये नेट एग्जाम में पूछा गया है। तो ये शेर मीर तक़ी मीर का है। इसके बाद मीर के तस्करे निकात शोरा के मुरत्तिब कौन है? ये सवाल नेट एग्जाम में पूछा गया। निकात शोरा को हबीबुर रहमान शेरवानी ने अपने मुकदमे के साथ निज़ामी प्रेस बदायूं से शाया किया। इसके बाद खूगर नहीं कुछ यूं, खूगर नहीं कुछ यूं ही
हमरेख्ता गोई के माशूक जो था अपना बाशिंदा दक्कन का था। मीर ने ये शेर किसकी तारीफ में कहा है? तो वली औरंगाबादी की तारीफ में मीर ने ये शेर कहा है। इतने ही सवालात हैं नाज़रीन जो गुज़िश्ता 10 बरसों में मीर तक़ी मीर पर पूछे गए हैं। इसके बाद वीडियोस का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और शामिल निसाब दो दीगर शोरा हज़रात हैं, मसलन मोमिन है, आतिश हैं, गालिब हैं, इन पर तबसरा अगले वीडियोस में किया जाएगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट्स बॉक्स में हमें लिख भेजिए अपने ख्यालात। और इसके अलावा नाज़रीन अगर कोई भी सवालात आपके जहन में आते हैं तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे सवाल कर सकते हैं, जैसा कि किया जा चुका है। कुछ सवाल था और उसके जवाब दिए गए हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में सेक्शन में जाके देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।